بھول گئے تھے اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی ہر چیز کو لبریٹ کرنے کی کوشش کی کہ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان فائقہ حسین آج حاضر ہوئی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ کے علاوہ حیران کن بھی ہونے والی ہے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے نظر آئے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے تھے اور یقین کرنے کے بھی دہانے پہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پہ یقین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ عرب ممالک ہی، مسلم کنٹریز ہی ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گی۔ وہ کون سی کنٹریز ہیں جو آپس میں حملہ آور ہو گئی ہیں، وہ آج کی اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو انٹرنیشنل ہم لوگ اپنی ویڈیوز کو جو ہے وہ غزہ سے ریلیٹ ہی اپڈیٹ کرتے ہیں، آنے والی ہر انٹرنیشنل خبر کو ہم نشر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک ہر ایک انٹرنیشنل کی جو اپڈیٹس ہے وہ پہنچتی رہیں۔ اگر آپ لوگ، کچھ لوگ جو چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیں جہاں تک سپورٹ کیا اور مزید کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ انٹرنیشنل اپڈیٹس، خبروں سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو کچھ زیادہ نہیں کرنا، آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دینا ہے تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ لوگوں کو ٹائم بہ ٹائم ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ تو ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر اور حیران کن خبر ہمارے پاس جو ہے وہ اس ٹائم، جو خبر میرے پاس ہے وہ اس ٹائم یہ ہے کہ ایران کا مسجد اقصی پر حملہ، یعنی کہ میزائل سے حملہ۔ یقین نہیں آتا اس بات پہ، اس بات کو سننے کے بعد ہم یقین نہیں آتا کہ آخر ایران نے مسجد اقصی پر حملہ کیوں کیا، بیکاز وہ ان کی بھی تو مسجد ہے، انہی کے ذمے میں بھی تو آتی ہے۔ دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی ولی عہد نے جو انکشاف کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ ایک آدمی جو سعودی عرب میں ایک طاقت رکھتا ہے، جو کسی کو کہے تو وہ مروا سکتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا آغاز کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ انکشافات کر رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جان کو کس سے خطرہ ہے اور کس بات کا انکشافات کر رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور کن وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یار، وہ ایک کنٹری میں جہاں وہ رہ رہا ہے، کیا اس کو کس چیز سے خطرہ ہو سکتا ہے اور کس قدر اس سے کیا کو جو بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، کیا پلان بنا کر بیٹھے ہیں جو اس سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں یا اس کی جان کو خطرہ ہو رہا ہے، کس چیز سے خطرہ ہو رہا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اس طاقتور انسان کو جو کہ اپنے ہی ملک میں ایک سلطنت کا بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے اور وہی کہہ رہا ہے کہ میری جو ہے مجھ سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، ان کو مارنا چاہ رہے ہیں، اس کا خدشہ اور اس نے خود بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایسی خبر بھی ہے جس کے ساتھ ہماری تیسری خبر جڑی ہوئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ طالبان نے آج اپنی 4 سالہ جیت کا جشن منایا ہے۔ جشن منانا یہاں پہ یہ خبر نہیں ہے، جشن کس طریقے سے منایا گیا اور ان میں کیا چیزیں آپ لوگوں کو دکھائی گئی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں گی کہ کس قدر وہ چیزیں انکریز کی گئی، چیزوں کو ایڈ کیا گیا اور کس قدر ان لوگوں نے جشن کس طریقے سے منایا۔ جشن منانا یہ خبر نہیں ہے، لیکن جشن کو جس طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا اس جشن کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ اور سب سے آخری خبر یہ تھی کہ ایران نے تمام انٹرنیشنل ایئر لائنز کو وارننگ دے دی ہے کہ ہم لوگ کسی بھی طریقے سے ہماری اسپیس کو، انٹرنیشنل ایئر لائن میں انہوں نے سب کو وارننگ دی ہے، سب ممالک کو، کہ آپ ہماری ایئر اسپیس کو یوز کرنا بند کر دیں، کیونکہ ہم لوگ اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے اور کسی بھی وقت یہ حملہ ہو گیا تو کوئی بھی مطلب جو ایئر اسپیس کو یوز کر رہا ہوگا وہ اس زمرے میں آ سکتا ہے، کیونکہ ہماری جو حملے کی اس دفعہ کی جو مطلب کہ ان کی ساری بات چیت ہے، جو معاملات ہیں، جو پلاننگ ہے، وہ ایئر کے ذریعے ہونے والے حملے ہیں، جو کہ وہ دوسرے ملکوں کو بھی وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری ایئر اسپیس کو یوز نہیں کرنا تاکہ آپ لوگ کسی بھی طرح کے نقصان سے بچ سکیں، نہ کہ اسرائیل پہ کیے جانے والے حملے کے زمرے میں آ سکے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دیر سے اسرائیل کے حملے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہوا ہے، آخر اب تک اس نے حملہ کیا کیوں نہیں ہے؟ آخر ان کی ڈیڈ لائن بھی تو 72 گھنٹے کی تھی، وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی اسرائیل پہ ابھی تک حملہ نہیں کیا ایران نے۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جو ایران ابھی تک اسرائیل پر حملہ نہیں کر رہا؟ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ آج جانیں گے۔ ایران کا مسجد اقصی پر بمباری، اس کے نتیجے میں عرب ممالک کا ایران پر حملہ کرنے کا بہت بڑا پلان عرب ممالک میں آ جاتا ہے۔ عرب متحد اور سعودی عرب ہو گیا، دیگر مسلم ممالک ہو گئے، انہوں نے جب ایران نے بمباری کی مسجد اقصی پر اور اس پہ ساری بات چیت سمجھ نہیں آتی کہ وہ بھی ایک مسلم ملک ہے، اس نے کیسے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا، اس کے بارے میں بھی بات
बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि आप लोगों ने हमें फुल सपोर्ट करना है और इसी के साथ हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है। वॉच करने के साथ साथ इंटरनेशनल अपडेट से बखबर रहने के लिए आप लोगों ने हमारे बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना। अब हम लोग अपनी इंटरनेशनल खबर का आगाज करते हैं। जो सबसे पहले हमारी खबर ये है कि सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि उनकी जान को खतरा है। उनकी जान को भाई किससे खतरा हो सकता है? सोचने वाली बात है कि वो एक मुल्क का बादशाह है और वो बादशाह होने के साथ साथ इंकशाफात कर रहा है कि भाई उसकी जान को खतरा है। वो अंदर ही अंदर इसराइल से जो था वो ताल्लुक नॉर्मल करना चाह रहा था। अमेरिकी कांग्रेस को उसने बताया कि हम ताल्लुकात को नॉर्मल करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ इसी इंकशाफात के साथ मुझे लगता है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कोई मार डालेगा या कुछ इस तरह से। और ताल्लुक नॉर्मल करने के बाद मेरे मुल्क के अंदर से ही लोग मुझे मारना चाहते हैं। बिल्कुल भाई, ऑब्वियसली इसराइल एक इस टाइम सबके लिए दुश्मनी का मॉल है। अगर कोई मुल्क मुस्लिम ममालिक उसका साथ देता है तो भाई मुस्लिम कंट्रीज तो उस मुल्क का दुश्मन ही बनेगा ना, उसको साथ तो नहीं देगा। अगर वो भी अपने इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करना चाह रहा है तो भाई तुम्हें नहीं नजर आ रहा उसने गजा पे फलस्तीन पे किस तरह से हमला किया, इस्माइल हनिया को मारने का किस तरह से प्लान बनाया और बिला झिझक सामने आके कहा कि भाई हाँ हम उसके कातिल, हमने प्लानिंग बनाई थी, हमने मारा है उसको। और अभी भी तुम उसके साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल करना चाह रहे हो। देखने वाली और सोचने वाली बात है। वो ताकतवर इंसान है सऊदी अरब में, लेकिन वो डर रहा है। वो किन चीजों से डर रहा है और किस वजह से डर रहा है? वजह तो यही थी कि वो इसराइल से ताल्लुक जो था वो अपने बहाल करना चाह रहा था, नॉर्मल करना चाह रहा था, क्योंकि बज़ाहिर कुछ ममालिक कुछ दिख रहे हैं और अंदर से वो अंदर ही अंदर कार्रवाई डालना शुरू हो रहे हैं। लेकिन उन्हीं के मुल्क में रह के कुछ उलमा कराम जिनकी बहुत ज्यादा उधर मानी जाती है, उनको अहमियत दी जाती है, वो क्योंकि जो सऊदी अरब है वो किस तरह से एक बड़ा रवायती मुल्क है, इस्लामी ममालिक के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, भाई उसकी जान को खतरा किस चीज से था? ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि भाई उनके जो बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क होने के बावजूद वहां पर जो बड़े उलमा कराम है उनका बहुत बड़ा अहम किरदार है हर रोल में। वो नहीं रोकते कि आप जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क को ऊपर बढ़ाना चाह रहे हैं, वो हर एक चीज में साथ देते हैं। लेकिन भाई जहां बात आती है इसराइलियों की तो वो उलमा कराम भी बोल पड़े हैं, वो उठ पड़े हैं और वो वली अहद को कह रहे हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा, ना इस मुल्क के लिए ना तुम्हारे लिए। तो इट्स मीन कि वो इन बातों से डरा हुआ है कि किसी भी तरीके से मेरी जान को कहीं भी खतरा हो सकता है, मैं डर रहा हूँ, या मेरे इसराइल के साथ रिलेशन बहाल करने के बाद जो मेरी दुर्गत होनी है, मेरी हालत होनी है, वो किस वजह से होनी है। अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं इंकशाफात कर रहा हूँ कि मुझे मारने की कोशिश की जाएगी तो उसका रीजन ये सब चीजें होंगी। उसका बताने का मकसद ये था। उन्हीं का ही कहना है कि मगर हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, मतलब किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसराइल के साथ तो ताल्लुकात रखना इस तरह है कि किसी अरब ममालिक से भी दुश्मनी मोल लेने के बराबर है। लेकिन सऊदी अरब के जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनका जो कांग्रेस अमेरिकी कांग्रेस में कहना था कि मैं उनके साथ बहाल करना चाह रहा था, उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाह रहा था, जो कि होने नहीं चाहिए थे। उसके साथ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि अमेरिकी सफीर पहुंचा है लबनान। हरनोस उसका नाम है और अमेरिकी सफीर जो कि पहुंच गया है लबनान और उसके साथ हिजबुल्लाह की मिन्नतें भी शुरू हो गई हैं। हिजबुल्लाह के साथ साथ उसने लबनान की मिन्नतें करना भी शुरू कर दी हैं। वो सफीर अमेरिकी सफीर है और वो लबनान पहुंच के वो करना क्या चाह रहा है? वो यही करना चाह रहा है कि भाई इसराइल पे जो जंग पे हमला होना है उसको रोक दिया जाए। मिन्नते तरले रिक्वेस्ट करने पर हिजबुल्लाह के साथ तो पहले वो कर रहा था, उसके साथ साथ उसने लबनान को भी चूज कर लिया और उनका एक सफीर जो हारोस है वो वहां पर पहुंच चुका है और पहुंच के उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि हिजबुल्लाह को जिस तरह वो मना रहा है कि उन पे हमला ना किया जाए, इसराइलियों पे हमला ना किया जाए, किसी भी तरीके से उनको हमले का शिकार ना किया जाए। लेकिन आपको दिखने में भी यही आता है कि इसराइल भी अपनी किसी भी चीज से हार नहीं मान रहा। अगर दूसरे ममालिक हार मानने पर आ रहे हैं तो लेकिन इसराइल हार मानने पे नहीं आ रहा। उसने ना चाहते हुए भी इस्माइल हनिया को बड़े प्रोपेगेंडा रेडी करके उसने को कत्ल करवाया, उनको शहीद करवाया और बाद में बिला झिझक सामने आके कहा कि भाई हम लोगों ने मारा है उसको, कोई डर नहीं है, न डर होकर बैठा हुआ है। और अभी भी उनकी मिन्नतें के लिए अमेरिका से सफीर भेजे जा रहे हैं कि भाई उन पे हमला ना किया जाए, उन पे हमला बिल्कुल ना किया जाए। हमला क्यों ना किया जाए भाई? बदले में तो बदला खून का बदला खून ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर यही वो बदला उनसे नहीं लिया जा रहा तो किसी को तो लेना ही है ना, और किस कदर लेना है ये आप लोगों को भी पता है कि इसराइल को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर उसको छोड़ा जाएगा तो वो फिर एक ताकतवर मुल्क बन के उभरेगा और दूसरे ममालिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिस तरह उसने फलस्तीन, गजा, हमास में बमबारी की, लोगों को बेघर किया, लोगों को शहीद करवा दिया, किस तरह उनके घरों को तबाह किया गया। समझ नहीं आती कि अभी भी इसराइल रुकना चाह रहा है, उनको रोकना चाह रहा है कि
भाई उनकी तरफ से उनके पास कोई मिसाइल ना आए, ईरान उन पे हमला ना करे, लबनान उन पे हमला ना करे, हिजबुल्लाह उन पे हमला ना करे। इसराइल ऐसे कैसे सोच सकता है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो खबर मेरे पास अब अवेलेबल थी वो हिजबुल्लाह की सुनने में अब आता है कि अगर क्या देखते हैं कि हिजबुल्लाह या लबनान उनकी बातों को सुनता भी है कि नहीं। मेरे ख्याल में तो अगर हिजबुल्लाह और लबनान उसका साथ देते हैं, सफीर का उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये नाइंसाफी है अपने दूसरे ममालिकों के साथ, अपने लोगों के साथ, फलस्तीन के लोगों के साथ, जबकि इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखना ये है कि किस तरह अफगानिस्तान के तालिबान ने 3 साला जीत का जश्न किस तरह से मनाया है। और आप देख सकते हैं कि कल उनकी जो जश्न का दिन था, उन्होंने अपने इस जश्न को किस तरह मनाया। जश्न मनाने पर इत्तेफाक नहीं किया जाता, लेकिन जश्न किस तरह मनाया गया, किस तरह से उसको सेलिब्रेट किया गया, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 3 साल हो गए अफगानियों को अमेरिका पर फतह हासिल किए हुए। यहाँ से बताया जाता है कि आज से 3 साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी 20 साला जंग का खात्मा किया था, यानी कि बहुत ज्यादा इन दोनों के दरमियान जंग चलती आ रही थी, लेकिन कुछ 3 साल पहले ही ये जंग खत्म हुई, उसका खात्मा हुआ। अफगानियों को अपनी जीत का वो हर साल जश्न मनाते हैं, लेकिन इस साल उन लोगों ने मतलब के आखिर कर दी, एंड तक वो चीज लेके गए। और इस बात का जिक्र इस बात में भी आता है, जब उन्होंने अपनी जंग का खात्मा किया अमेरिका ने अपनी 20 साला, तो वो वहां से निकल गए। निकलने के बाद उन्होंने पीछे छोड़े गए बेतहाशा खरबों रुपए का जंगी सामान तालिबान को दे दिया और अपना सामान वहां छोड़ दिया। तालिबान ने मतलब इतना महंगा और एक्सपेंसिव सामान, हर तरह के मिसाइल थे, जंगी सामान था, ईच एंड एवरीथिंग, और खरबों बहुत ज्यादा कह रही हूँ मैं ये, और इससे ऊपर की अमाउंट पे इसको कहा जा सकता है कि इस तरह से उसने अपने जंगी सामान को वहां छोड़ा। और उसके बाद जो सारा आलम है, उन्होंने 3 साल बाद इन सारी चीजों को शो ऑफ किया, और इन सारी चीजों को जिसमें हेलीकॉप्टर मिसाइल आ जाते हैं, डिफरेंट तरीके से मिसाइल आ जाते हैं, हवाई मिसाइल, ड्रोन्स, ईच एंड एवरीथिंग, जंगी सामान को एक एग्जीबिशन के तौर पर लगाया। कल उन्होंने शो करवाया कि वो अपना जंगी सामान जो भूल गए थे, और इसी तरह से उन्होंने अपनी हर चीज को लिबरेट करने की कोशिश की कि हमने अमेरिका से ये चीज फतेह किया और ये चीज। और सबसे बड़ी बात अब ये आती है कि मस्जिद अक्सा पर हमला करने का क्या रीजन था। बाय मिस्टेक भी हो सकता है, अभी तक वो रीजन सामने नहीं आ सका कि ईरान ने मस्जिद अक्सा पर क्यों हमला किया। और बड़ी मस्जिद अक्सा पर हमला करने के बाद बहुत से ममालिक हैं उसके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि वो एक मुस्लिम मस्जिद थी और वो उसका लिंक ईरान के साथ भी है। ये नहीं है कि ईरान के साथ उसका लिंक नहीं है, उसका लिंक ईरान के साथ भी है, लेकिन ईरान के हमला करने की वजह अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी। जैसे ही वो हमारे सामने आएगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।